Hello students, I am Ishi ma'am and welcome to my YouTube channel MNS Mentors. Today I will teach you first chapter of class 10th. So let's start. First chapter of biology in class 10th is life processes. In this chapter, 4 units are included, means 4 types of life processes are nutrition, respiration, excretion and transportation. So students, it is the first chapter of biology in class 10. Chapter name is life processes. In this chapter, 4 types of life processes include nutrition, respiration, excretion and transportation. Before studying nutrition, I will teach you about life process. What is life process? Life process is a vital process. What is the meaning of vital process? Vital process means internal process. It occurs inside the body and it is a biological and biochemical process. What is the meaning of biological and biochemical process? Bio means living, means this process occur in living beings, and biochemical process means this process occur in living beings and also some chemicals are required. So life processes are important process by which living organisms can survive easily. Life process is a vital process and biological process and biochemical process. Now we start nutrition. What is nutrition? Nutrition is a basic process of every human being. Nutrition word is derived from nutri word. In simple way, we can say about nutrition that nutrition is a process in which living beings occur and get food from outer source. But in class 10th, we can say nutrition is a process in which energy giving food or that substances or components which provide energy is known as nutrition. न्यूट्रिशन प्रोसेस में जो भी हमारा लिविंग बींग्स होता है वो किसी आउटर सोर्स से फूड को एक्सेप्ट करता है. क्यों? क्योंकि उसकी जो जितनी बेसिक डेली लाइफ के प्रोसेस हो रहे होते हैं वो कंप्लीट होते हैं फूड की हेल्प से, क्योंकि फूड प्रोवाइड करता है एनर्जी और एनर्जी होती है हमारे किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी. सो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू एनी वर्क एंड एनर्जी वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. अब फूड से ही रिलेट कर रहा है हमारा न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन मीन्स होता है टू टेक फूड फ्रॉम आउटसाइड. न्यूट्रिशन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन? Here is nutrition is 2 types, autotrophs and heterotrophs. What is the meaning of autotrophs and heterotrophs? Auto means self and trophs means nutrition. Hetero means depend, trophs means nutrition. Autotrophs word is made up of 2 words auto and trophs. Auto means self and trophs means nutrition. So in autotrophic nutrition, living beings or living organisms can prepare their own food itself. ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन में जो भी हमारे लिविंग बींग्स होते हैं वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं. जस्ट लाइक एज ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स, जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सभी हमारे ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं और जो भी लिविंग बींग्स ये प्रोसेस को करते हैं वो हमारे ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं. तो ग्रीन प्लांट्स को इसी वजह से प्रोड्यूसर भी कहा जाता है. Why we say green plants are producer? Because green plants produce food. ये ही फूड को प्रोड्यूस करते हैं. बाकी जितने भी हमारे लिविंग बींग्स होते हैं इन ग्रीन प्लांट से ही अपने फूड को लेते हैं. तो ग्रीन प्लांट जो हमारे फूड को प्रिपेयर करते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटो
Synthesis. Photosynthesis. Green plants contain green pigment called chlorophyll or chloroplast. By the help of chloroplast and in the presence of sunlight, green plants prepare their own food in the form of starch and water. CO2 एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर हम लोग देते हैं या सॉइल से लेते हैं, प्रेजेंट होती है इनकी सनलाइट की और क्लोरोफिल की, फॉर्म करते हैं ये फूड ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन होती है इनको हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू लेते हैं। तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई। और फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर own food. That nutrition is a type of auto nutrition, means self nutrition, and that producer or organism is known as autotrophs. Now we describe heterotrophs. Heterotrophs is a process in which living beings do not prepare their food. They depend on other substances for food. जो हेटेरोट्रॉफ्स में हमारे लिविंग बींग्स होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिम्स पे डिपेंड होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग इनका जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। कई बार ये किसी की बॉडी में रहते हुए अपना फूड गेन करते हैं, कई बार ये किसी बॉडी की आउटर सरफेस पे रहते हुए अपना फूड लेते हैं, कई बार ये साथ साथ ही रहते हैं और फूड लेते हैं, कई बार इनकी बॉडी में एक स्पेसिफिक और स्पेशल ऑर्गन होता है जिनकी हेल्प से ये फूड लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ये अपने फूड को लेने के लिए डेड या डिकेइंग सब्सटेंसेस ढूंढते हैं, मतलब कि जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हों, नष्ट हो चुके हों। तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारा हेटेरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन होता है, पहले आता है हमारा पैरासाइट। पैरासाइट्स हमारे जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक्सोपैरासाइट्स मींस जो बॉडी के बाहर हो, एंडोपैरासाइट मींस जो बॉडी के अंदर हो, और प्लांट पैरासाइट। कुछ प्लांट होते हैं जो पैरासाइट की फॉर्म में होते हैं। सेकंड हमारा होता है होलोफिटिक न्यूट्रिशन। होलोफिटिक न्यूट्रिशन में एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिनकी हेल्प से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को गेन करते हैं। और थर्ड हमारा होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो here are 3 types of heterophytic nutrition. First is parasites, and parasites again divided into 3 parts: exoparasite, endoparasite, or plant parasite. Second is holophytic nutrition, and third is saprophytic nutrition. In parasitic nutrition में जो हमारे लिविंग बींग्स होते हैं वो फूड को कैसे लेते हैं, ये किसी लिविंग बींग की बॉडी में दूसरे लिविंग बींग की बॉडी में रहते हैं। तो जो फूड को लेता है दैट इज नोन एज पैरासाइट, और जिसकी बॉडी में रहते हैं दैट इज नोन एज होस्ट। अब पैरासाइट हमारे जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, तो इसमें क्या होता है, एक लिविंग बींग दूसरी लिविंग बींग की बॉडी में सर्वाइव करता है और उससे अपने फूड को गेन करता है, और जिसकी बॉडी में ये रहता है उसके लिए हार्मफुल भी होता है। तो जिसकी बॉडी में रह रहा होता है दैट इज होस्ट, जो फूड ले रहा होता है दैट इज पैरासाइट। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। It further divided into exoparasitic. Exoparasitic means these living organisms present on the upper surface of the body and they feed upon them. ये किसी दूसरे लिविंग बीइंग की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और वहां से अपने फूड को लेते हैं। जस्ट लाइक एज लीच, जैसे वो देखा होगा सुना होगा आपने, जोंक ब्लड को सक करती है, मॉस्क्यूटो एंड ह्यूमन लाइस मीन्स जुएं। तो ये हमारी बॉडी के अपर सरफेस पे रहती हैं और अपना फूड लेती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो हमारे लिविंग ऑर्गन्स होते हैं वो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और वहीं पे सर्वाइव करते हैं। जस्ट लाइक एज टेपवर्म। टेपवर्म इज अ फ्लैट वर्म, इट्स साइंटिफिक नेम इज टेनिया सोलियम and other bacterias and viruses. And third type of parasitic nutrition is a plant parasites. Plant parasites are those plants
which behave like a parasitic organism, and they show parasitic nutrition like as dodder, rafflesia, ये हमारे प्लांट्स होते हैं जो प्लांट पैरासिटिक की तरह बिहेव करते हैं, यानी किसी दूसरे प्लांट पे रहते हैं और उनसे अपने फूड को गेन करते हैं। अब सेकंड हमारा उसमें आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मींस जो भी हमारे ऑर्गेनिम्स होते हैं वो अपने फूड को डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस से लेते हैं। तो ये फूड को, जो हमारा डेड और डिकेइंग फूड होता है, उसके ऊपर ये एक तरह के एंजाइम्स को सैक्रेट करते हैं और उस जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है उसको सिंपल फूड मटेरियल में डिकम्पोज कर देते हैं और उससे अपने फूड को लेते हैं। इसमें हमारा आ जाता है फंगी, मशरूम एंड बैक्टीरिया। इसके अलावा जो थर्ड टाइप था हमारा वो है होलोफिटिक न्यूट्रिशन। होलोफिटिक न्यूट्रिशन में जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिम्स होती है उसकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिनके थ्रू ये फूड को लेते हैं। जस्ट लाइक ए स्पेसिफिक ऑर्गन इज माउथ, ये माउथ के थ्रू फूड को लेते हैं। और जिनमें होलोफिटिक न्यूट्रिशन होता है उनमें 5 प्रोसेस होते हैं पूरे न्यूट्रिशन में। फर्स्ट हमारा होता है इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज absorption, fourth is assimilation, and last egestion। तो जितने भी हमारे होलोफिटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं तो उनके पूरा जो न्यूट्रिशन प्रोसेस फॉर्म होता है वो इन 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। और ये जो हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है इसमें हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन भी पार्टिसिपेट करते हैं और जो मेन ऑर्गन होता है वो हमारा माउथ ऑर्गन होता है। तो होलोफिटिक न्यूट्रिशन को शो करने वाले मोस्टली जो हमारे होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स and omnivores। Herbivores are those animals which depend upon green plants, herbs, shrubs. Carnivores are those organisms which can get their food from the flesh of other animals. And omnivores are those living organisms which get their food from herbs, shrubs, trees and flesh of other animals also। तो ये थे हमारे टाइप्स होलोफिटिक न्यूट्रिशन के जो होलोफिटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सिंपल एक लाइफ प्रोसेस का हो गया था स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशन को समरी हो गया था ये न्यूट्रिशन का। अब हम इस न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा, जैसे कि छोटे स्मॉल लेवल पे फोटोसिंथेसिस हो गया, हमारा होलोफिटिक न्यूट्रिशन हो गया, अगर ये समझ आ जाएगा तो हम लोग आगे अपने स्टेप में बढ़ेंगे। तो आप लोग इसको नोट्स बना के लिख लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।